2015 in the COP21. Though India is not a major pollutant country, but as a responsible global leader, Prime Minister Modi placed in front of global community. India will reduce its carbon emission. We will have a green pathway, decarbonized pathway. This was not mere assurance. This was not mere a slogan. This was a clear-cut, there was a clear-cut roadmap, there was a clear-cut vision for that. When Prime Minister was Chief Minister of Gujarat, he created a gas-based economy in the state of Gujarat. Today, friends, we all will be proud. Today, when in the energy mix of the global energy consumption, natural gas is around 24%. In India, national average is 6%, which we have a vision to augment it up to 15%. But in decades ago, Prime Minister Modi, as Chief Minister of the state, has implemented the gas-based economy. The mix percentage is 26%, which is 2% above than the global average. Where our government is committed for ease of living, is not only the targets, billions dollars has been spent on this project. On gas pipeline, we have ambition to double the gas pipeline, LNG terminals, city gas network. We are committed to have a green pathway, decarbonized pathway. I am grateful to all the dignitaries, those who have participated in this auspicious day. I am welcoming all of you. Thank you, friends. मैं माननीय मुख्यमंत्री कर्नाटक श्री BS येदियुरप्पा जी से निवेदन करता हूं कि वे इस अवसर पर संबोधित करें। Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji, Honorable Governor of Karnataka Shri Vajubhai Vala ji, Honorable Governor of Kerala Shri Arif Mohammad Khan ji, Honorable Chief Minister of Kerala Shri Pinarayi Vijayan ji, Honorable Union Minister of Petroleum and Natural Gas and Steel Shri Dharmendra Pradhan ji, Honorable Union Minister of Parliamentary Affairs, Coal and Mines Shri Prahlad Joshi ji, Honorable Minister of State for External Affairs Shri V. Muralidharan ji. It is indeed a historical day for the state and the country, as the much awaited Kochi-Mangalore pipeline project is dedicated to the nation today, sir. I congratulate the Honorable Prime Minister for launching the ambitious project in line with target of increasing the use of natural gas to 15% by 2030, sir. The project will benefit households, commercial establishments and industries of Udupi and Dakshina Kannada district of Karnataka. The pipeline intends to supply piped natural gas to about 4 lakh houses for the domestic cooking purpose, along with commercial establishment, industries, etc. It will also supply compressed natural gas to vehicles in the transport sector through city gas distribution projects in Dakshina Kannada and Udupi, sir. It will also cater to eco-friendly fuel requirements of power plants and fertilizer plants in the industrial areas and SEZs. I am happy that the project is successfully completed despite of several challenges. In the whole, Bangalore pipeline is already functioning and is catering to 25,000 households in Bangalore. Infrastructure to connect 1,68,000 households has been developed in Bangalore alone. नमस्कार। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान जी, कर्नाटक के राज्यपाल वजुभाई वाला जी, केरला के मुख्यमंत्री श्री पिनाराई विजयन जी, कर्नाटका के मुख्यमंत्री
श्री वीएस येडियुरप्पा जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल में मेरे सहयोगी श्री धर्मेंद्र प्रधान जी, प्रहलाद जोशी जी, वी मुरलीधरन जी, सांसदगण, विधायकगण और भाई और बहनों, it is an honor to dedicate the 450-kilometer Kochi-Mangaluru natural gas pipeline to the nation. This is an important day for India, especially for the people of Kerala and Karnataka. These two states are being connected by a natural gas pipeline. I congratulate to people of these states. Congratulations also to all stakeholders for taking steps to providing clean energy infrastructure. The pipeline will have a positive impact on the economic growth of these two states. साथियों, कोची मैंगलुरु पाइपलाइन इस बात का बहुत बड़ा उदाहरण है कि विकास को प्राथमिकता देते हुए सभी मिलकर काम करें तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं। ये प्रोजेक्ट से जुड़े लोग जानते हैं कि इंजीनियरिंग के लिहाज से इसे पूरा करना कितना मुश्किल था। प्रोजेक्ट में कई दिक्कतें भी आई, लेकिन हमारे श्रमिकों, हमारे इंजीनियरों, हमारे किसानों और राज्य सरकारों के सहयोग से ये पाइपलाइन पूरी हुई। कहने को ये सिर्फ एक पाइपलाइन है, लेकिन दोनों राज्यों के विकास को गति देने में इसकी बहुत बड़ी भूमिका होने वाली है। क्यों आज देश गैस बेस्ड इकोनॉमी पर इतना बल दे रहा है? क्यों वन नेशन वन गैस ग्रिड पर इतनी तेजी से काम हो रहा है? क्यों आत्मनिर्भर भारत के लिए गैस बेस्ड इकोनॉमी का तेजी से विस्तार बहुत जरूरी है? वो सिर्फ इस एक पाइपलाइन के फायदों से समझ आ जाएगा। पहला, ये पाइपलाइन दोनों राज्यों में लाखों लोगों के लिए ईज ऑफ लिविंग बढ़ाएगी। दूसरा, ये पाइपलाइन दोनों ही राज्यों के गरीब, मध्यम वर्ग और उद्यमियों का खर्च कम करेगी। तीसरा, ये पाइपलाइन अनेक शहरों में सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम उसका एक माध्यम बनेगी। चौथा, ये पाइपलाइन अनेक शहरों में सीएनजी आधारित ट्रांसपोर्ट सिस्टम को डेवलप करने का आधार बनेगी। पांचवा, ये पाइपलाइन मैंगलोर केमिकल और फर्टिलाइजर प्लांट को ऊर्जा देगी, कम खर्च में खाद बनाने में मदद करेगी, किसान को मदद होगी। छठा, ये पाइपलाइन मैंगलोर रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल को ऊर्जा देगी, उन्हें स्वच्छ ईंधन देगी। सातवां, ये पाइपलाइन दोनों ही राज्यों में प्रदूषण कम करने में बड़ी भूमिका निभाएगी। आठवां,
प्रदूषण कम होने का सीधा असर होगा पर्यावरण पर। जितनी कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन इससे कम होगा, वो लाखों पेड़ लगाने के बाद ही हासिल हो सकता है। साथियों, नवा लाभ ये कि पर्यावरण बेहतर होने से लोगों की सेहत भी अच्छी रहेगी, बीमारी पर होने वाला उनका खर्च भी कम होगा। 10वां, जब प्रदूषण कम होगा, हवा साफ सुथरी होगी, शहर में गैस आधारित व्यवस्थाएं होगी, तो और ज्यादा टूरिस्ट आएंगे। टूरिज्म सेक्टर को भी इसका लाभ होगा। और साथियों, इस पाइपलाइन के 2 और लाभ हैं जिनकी चर्चा बहुत जरूरी है। इस पाइपलाइन के निर्माण के दौरान 12 लाख मैन डेज का रोजगार जनरेट हुआ है। पाइपलाइन के शुरू होने के बाद भी रोजगार और स्वरोजगार का एक नया इकोसिस्टम केरला और कर्नाटका में बहुत तेजी से विकसित होगा। फर्टिलाइजर उद्योग हो, पेट्रोकेमिकल उद्योग हो, बिजली उद्योग हो, हर उद्योग इससे लाभ लेगा और रोजगार के अवसर बनेंगे। साथियों, इस पाइपलाइन का एक और बड़ा लाभ पूरे देश को होगा। जब ये पाइपलाइन पूरी क्षमता से काम करना शुरू कर देगी, तो देश की हजारों करोड़ की विदेशी मुद्रा ये खर्च बच जाएगा। भारत COP21 के लक्ष्यों को लेकर जिस गंभीरता से काम कर रहा है, ये प्रयास हमें उसमें भी मदद करेंगे। साथियों, दुनिया भर के एक्सपर्ट्स का कहना है कि 21वीं सदी में जो भी देश अपनी कनेक्टिविटी पर और क्लीन एनर्जी पर सबसे ज्यादा जोर देगा, तेजी से काम करेगा, वो तेजी से नई ऊंचाई पर पहुंचेगा। आज आप जिस भी फ्रंट पर देखें, हाईवे कनेक्टिविटी, रेलवे कनेक्टिविटी, मेट्रो कनेक्टिविटी, एयर कनेक्टिविटी, वाटर कनेक्टिविटी, डिजिटल कनेक्टिविटी या फिर गैस कनेक्टिविटी, भारत में जितना काम अभी हो रहा है, एक साथ इतने सभी क्षेत्रों में उतना पहले कभी नहीं हुआ। एक भारतीय के तौर पर यह हम सभी का सौभाग्य है कि हम ये होते हुए अपनी आंखों से देख रहे हैं। हम सभी विकास के इस नए आंदोलन का हिस्सा है। भाइयों और बहनों, पिछली शताब्दी में भारत जिस भी रफ्तार से चला, उसकी अपनी वजह रही है। मैं उनके विस्तार में नहीं जाना चाहता, लेकिन इतना तय है कि आज का युवा भारत दुनिया पर छा जाने के लिए अधीर भारत अब धीरे नहीं चल सकता। इसलिए ही बीते वर्षों में देश ने स्पीड भी बढ़ाई और स्केल भी बढ़ाया, साथ साथ स्कोप भी बढ़ाया। साथियों, भारत की नई पीढ़ी का एक अच्छा गुण है कि वो तथ्यों के आधार पर चीजों को परखती है और उसकी सफलता विफलता को
तुलनात्मक रूप में भी एनालाइज करती है और हर एक बात को तर्क के आधार पर, तथ्य के आधार पर स्वीकार करती है। भारत में गैस बेस्ड इकोनॉमी को लेकर अभी जो काम हो रहा है उसमें भी कई तर्क और तथ्य बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथियों, हमारे देश में पहली इंटर स्टेट नेचुरल गैस पाइपलाइन 1987 में कमीशन हुई थी।